ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मारिया यकीन खान और सबको आज के अवामी आगाही लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम का इनेकाद सिंध इनोवेशन रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क सायरन और बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई व हयातियाती उलूम जामिया कराची की जानिब से किया गया है। आज का प्रोग्राम बकरा ईद के मौके पर फैलने वाली बीमारियों और उनके बचाव की एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. सुभान अल्लाह। अब मैं अपने मोहतरम उस्ताद और सरबराह ICCPS प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रजा शाह को मदऊ करती हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। Let me thank first Dr. Saman. Just once again, just coming here, and I'm sure that your lecture will be insightful like the previous one. And it's a very timely topic. You know that diseases which are spread after this Eid al-Adha, and especially during Eid al-Adha, we are just slaughtering animals, and we are also remain in close association with animals which we are sacrificing. And due to that reason, it's important that we should know that and we should take precautionary measures. Because there are many like cases where the diseases have been transferred from the animal to the human, and one of the case was the COVID-19 pandemic, where it was believed that that it was transferred from the animal to the human beings. So this is that's why it is important that we should educate our people to take care of that, to take care of their health, and then you know that excess of everything is bad, and everyone in our society is having meat from different animal. So you should just be sensitized to these kind of lectures, that one should just consume the meat with just moderation, that you should not eat too much meat, but you can eat the meat, but with up to a certain limit. So this is why this topic is important, and I then being
and chief executive of the Sindh province in Pakistan Academy of Sciences. So then we decided that why not this program should be here in the whole country. So then I wrote a letter to the Pakistan Academy of Sciences that I would like that this particular lecture, which is quite relevant to the public, it should be listened across the whole country. And they agreed, and they would just record this, and some of their members are attending it online, but the recording of this lecture will be just shared with all members of the Pakistan Academy of Sciences. So this is with this, I will not take much more time. I have I'm thankful, Dr. Sahiba, again for your visit, and thank you so much. I know you are extremely busy, and you every year you are coming here, and we are learning a lot from you in different topics. So today topic is again an important topic, and I'm sure the people would get benefit from your lecture. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। आज हमारे साथ डॉक्टर समन नदीम मौजूद हैं, जो कि नेशनल मेडिकल सेंटर कराची में कंसल्टेंट क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सेक्शनल हेड माइक्रोबायोलॉजी और हेड ऑफ कंट्रोल इन्फेक्शन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं। मैं डॉक्टर साहिबा को मदऊ करती हूँ कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम ऑल एंड अ वेरी वार्म वेलकम। एंड मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट 1 घंटे तक हूँ, और सेशन को हम बायलिंगुअल रखेंगे, और मेरी जुज़वी तारुफ आप लोगों से पहले भी है, और आई होप कि ये सेशन फ्रूटफुल हो। और मैं चाहूंगी कि हम सब जो है इसको एक इंटरेक्टिव सेशन की तरह लेना। इट्स नॉट लाइक अ पीपीटी जिसमें मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, बस आप लोग सुन लें। आप लोगों को लिसनर नहीं रहना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ठीक? तो बीच में मुझे रोक दीजिएगा, सवाल करना, कोई अपना इनको देना है तो हमें ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके, स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, हिडन इन्फेक्शंस अराउंड बकरा ईद, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। अच्छा, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव स्लाइड में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें पहला जो इसका स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है आज का, व्हाट इज पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव? फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू फॉर द पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ बढ़ती हुई महंगाई, तो व्हाट इज पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव? क्या होता है पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव? इसके बारे में बात नहीं कर रहे। जनरल व्हाट डू यू मीन इफ आई एम टेलिंग दैट पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, व्हाट इज पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव? कैन एनीवन टेल मी? हाँ, अच्छा, मुतासिर करती है, और इसके अलावा सिर्फ मुतासिर करती है, मतलब कोई, हाँ, फीडबैक भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है? और व्हाट जनरल पब्लिक थिंक्स अबाउट इट, और उनका एक मतलब एक दिमाग की कह सकते हैं कि उनकी दिमाग में उस बात को लेकर क्या तासुरात हैं, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम, क्या चीजें हैं ऐसी जिनसे वो सोच रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, कुछ तहफ्फुजात हैं, ठीक है? वो पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव है, ठीक है? फ्रॉम sacrificial animals to silent pathogens, understanding infections risk, AMR, antimicrobial resistance, and public health challenges during Eid al-Adha, ठीक है? Okay. Now my info: I am an MBBS subsidiary doctor in clinical microbiology and serving as the head of infection control and consulting clinical microbiologist at National Medical Center since 7 years. Okay, Bakra Eid through a microbiologist lens. Bakra Eid is a religious celebration, that is Eid al-Adha, but from a microbiologist lens, it is also a period of increased zoonotic exposure, environmental contamination, food safety risk, and antimicrobial misuse. अच्छा देखिए, ईद में बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली बात तो एनिमल्स आते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि जो ईद उल अजहा होती है उसकी प्रिपरेशन या उसकी जो एक कहते हैं ना, वो खुशबू कब से आने शुरू हो जाती है? जब जानवर आता है। इज इट राइट? आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, कि मतलब हाँ, जानवर आ गया, बच्चे वो एक्टिव हो रहे होते हैं। बच्चों का तो दिल ही नहीं लग रहा होता पढ़ाई में, बड़ों का अलग वो होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को, खवातीन को मैं देखती हूँ, मंडी आने को भी बहुत शौक होता है, वो कि जाना है, जानवर लेकर आना है, चीजें करनी। तो चीजें जो है वहां से बेसिकली जो है ईद उल अजहा प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस जो एक गहमा गहमी है ना, उसके साथ एक स्पेसिफिक रिस्क भी होता है, जिसको हम हमेशा छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अच्छा, रिस्क किस किस चीज का है? सबसे पहले तो इंक्रीज जूनोटिक एक्सपोजर। आप लोग मुझे बताएं कि
आप लोगों के घर में किस किस के घर में जानवर पला हुआ है? कोई भी जानवर, कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर। 1 2 3 4, इतने सारों में से 4 बंदे हैं, 5 चलो इनके घर में जानवर पला है। अब ये लोग है ना, इनका जूनोटिक एक्सपोजर ओवर द ईयर होता है। बाकी जो बाकी बैठे हैं ना, उनका जूनोटिक एक्सपोजर सिर्फ 15 दिन 20 दिन के लिए। बहुत फर्क है। अच्छा, अब मुझे, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जानवर पला हुआ, कौन सा जानवर पला है? बिल्ली पली हुई है। ख्याल रखते हैं उसका? तो ऑब्वियसली रखते होंगे। नहीं भी रखते होंगे तो बताएंगे नहीं। हाँ, अब उसकी वैक्सीनेशन है, वो बीमार हो गई, उसकी केयर है। मे भी हो सकता है कभी हो, जुएं हो जाती हैं बिल्ली के फर में, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हमें जानवरों से हो जाती है। इन सब का जितना इनको पता होगा ना, मेरा जहां तक ख्याल है, जिनके घर में बिल्ली नहीं है उनको नहीं पता होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब जब तक हम उसमें इंडल्ज नहीं होंगे हमें पता नहीं होगा। तो ये जो जूनोटिक एक्सपोजर है ना, ये एक्सपोजर जो हमारा 10 से 15 दिन के लिए होता है ना, तो बहुत सारी चीजों को हम खुद ओवरलुक कर जाते हैं। हम कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, जानवर है। अच्छा, बहुत टाइम मैंने देखा है बच्चे जो है जानवरों को खींच रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं उन्हीं, अच्छा टहल रहे हैं, आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में या तो नीचे होते हैं अपार्टमेंट, जैसे मेरे मेरे रहायश अपार्टमेंट में, जो लोग बंगलोज में रहते हैं उनके तो जो बाहर वाला एरिया है वहां पे जानवर बंधा हुआ होता है। तो अब वही पैर वही चीजें बच्चे लेके आ रहे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव एनी, उन्होंने उस जानवर को पूरे साल नहीं देखा, उनको नहीं पता। लेकिन जिनका कोई एक एनिमल एक्सपोजर है, वो उनको पता होता है, छोटी छोटी बातों का पता होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्ली को लेकर क्या, अगर कोई गेस्ट आता है आपके घर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आती हूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि मतलब क्या चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए? सही, बिल्कुल। हाँ ठीक है, मतलब वो साफ सफाई वगैरह आप कह रहे हैं, हाँ थोड़ा साफ पाक जानवर है। हाँ बेटर, हाँ। अच्छा, डॉग्स का अलग मसला है, आपको पता है डॉग्स के तो अच्छा वैक्सीनेशन करवाते होंगे आप बिल्ली की अपनी, और उससे भी मतलब आपको कभी बीमार भी पड़ जाती होगी। अच्छा, बीमारियां भी उनकी अलग होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो हम एक्वायर कर सकते हैं, और कुछ होती हैं जिनसे हमें कोई वो नहीं होता। घर में कोई अगर प्रेग्नेंट औरत होगी तो कोशिश करते हैं हम कि जानवर का एक्सपोजर उससे कम से कम हो, ठीक है, बिकॉज की जूनोटिक एक्सपोजर कैन लेड टू अ सर्टेन फॉर्म ऑफ डिजीजेस। ओके, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, दूसरी बात, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन का क्या मकसद है? अभी आजकल जानवर आया, आप लोग इन्वायरमेंट में क्या चेंज नोट कर रहे हैं? मुझे कोई बताएगा? स्मेल सबसे, आज मैं सुबह गाड़ी में बैठ रही थी और मेरा आनी शुरू हो गई। स्मेल, सबसे पहली स्मेल, और इसके अलावा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल। अब देखिए, पता चल रहा है इनकी घर में बिल्ली पड़ी हुई है। सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें भी ज्यादा, अच्छा बाकी वेदर के भी इश्यूज हैं आजकल। सेकंड, एनिमल्स को जिन हालात में रखा जाता है, लाया जाता है, बेचा जाता है, और इवन हम भी, क्योंकि हमारा एक्सपोजर बहुत ब्रीफ है, हमें उस जानवर से 10-15 दिन का ही हमारी मुलाकात है, और ज्यादातर टाइम या तो पिक्चर्स खींचने में बच्चे उसको खींच रहे होंगे, या मतलब ऑब्वियसली वो पॉइंट ऑफ अटेंशन तो होता है, बट उसकी उस तरह केयर नहीं हो सकती जिस तरह एक बंदा जिसने सालों से एक जानवर पाला है वो उसकी केयर करेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। फूड सेफ्टी रिस्क एंड एंटी माइक्रोबियल मिसयूज, अब ये तो फूड सेफ्टी और एंटी माइक्रोबियल मिसयूज है ना, ये बकरीद के बाद की कहानी है, ये तो मैंने आपसे बकरीद की पहले की बातें बताई। अब फूड सेफ्टी रिस्क, फूड सेफ्टी रिस्क का सबसे पहले जो मसला है वो ये कि जब कुर्बानी का गोश्त कट जाता है और जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं, कलेजी है, कुछ कुछ चीजें जो बहुत फ्रेश पक जाती हैं ना, ऑर्गेन फूड्स यूजुअली लोग फ्रेश बना लेते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो लोग रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वेदर कंडीशंस आप देख रहे हैं कितनी बुरी वेदर कंडीशंस है। सेकंड ये कि फ्रीजर फ्रिज स्टोरेज प्रॉपर, इन सब चीजों की वजह से जो बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोलिफरेट करते हैं हमारे उस स्पेसिफिक गोश्त में जिसको हमने रख के छोड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड है, वो एक हब है, इस वक्त बैक्टीरिया उसमें बढ़ेगी, ठीक है, एंड एंटी माइक्रोबियल मिसयूज, वो फिर हम बाद में बात करेंगे। Now, Bakra Eid beyond celebration is a massive human-animal interaction, as I told you, temporary urban slaughtering, food handling at a large scale. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जब बकरा ईद हो जाएगी फिर वो टिक्का पार्टी, ये बारबेक्यू पार्टी, तुम 2 किलो गोश्त, तुम 4 किलो गोश्त, तुम ये लेके आना, ये कबाब, अच्छा बाल्टी में कबाबों का गोश्त लगाया हुआ होता है लोगों ने, लिटरली मतलब एक बहुत मैसिव फूड हैंडलिंग है जो हम पूरे साल नहीं करते, ठीक है, हम बहुत कम अमाउंट की फूड हैंडलिंग करते हैं। देगे बन रही है बिरयानी की, राने रोस्ट हो रही हैं, तो दिस फूड हैंडलिंग नीड्स अ वेरी लाइक प्रॉपर केयर, और कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना।
इंक्रीज एनवायरमेंटल एक्सपोजर एंड हिडन इन्फेक्शंस ट्रांसमिशन रिस्क। नाउ ये पिक्चर है, आई होप कि सबको अच्छा होगा। सबसे पहले मैसिव ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन, जो पहला वाला इसके अंदर ये वाला दिख रहा है ना आपको, मैसिव ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन। अभी हम यहाँ पे हैं। कौन कौन मंडी गया? खुद कोई भी नहीं गया। जानवर कैसे आ रहे हैं? फूड पार्टनर टीसीएस से तो नहीं आ रहे जानवर कोई तो। अच्छा लोकल नहीं है, ओके। तो मंडी का मतलब एक्सपोजर एनिमल इंटरेक्शन तो हुआ होगा। अच्छा, दो एनिमल इंटरेक्शन है, एक वो जो जानवर घर पे आ गया या जो यूजुअली लोगों ने टेंट्स वगैरह लगाए होते हैं, उसमें 4-5 गायें 2-3 बकरे वो होते हैं। एक जो मैसिव एनिमल ह्यूमन वो है ना इंटरेक्शन, वो होता है हमारा मंडी में। अच्छा, सब 2-3 बातें हैं। बहुत सारी जूनोटिक डिजीजेज होती हैं जो हमारे यहाँ क्रॉस चेक नहीं होती। जब जानवर लाया जाता है, हमारे यहाँ कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है वो देखे। आपको पता है एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है जो काऊ में होती है, ठीक है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है। और वो खास तौर पे मैंने बाद में भी फेसबुक वगैरह पे देखा है, सोशल मीडिया पे, कि गोश्त जब आप देख खोलते हैं लोग तो कहते हैं यार उसमें वो फोड़े जैसी कोई चीज बनी हुई थी, तो वो टिपिकली बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस की काऊ का मीट होता है। अच्छा, मसला इसका नहीं है कि वो सारी बीमारियां हमें लग जाएंगी, मसला ये वो जानवरों से जानवरों को भी लग रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि भाई 2 गाय थी तो तीसरी बीमार हो गई, एक बकरा बीमार था उसके साथ आपने 2। रेगुलेटरी अथॉरिटीज या जो लोग जानवर बेच रहे हैं या जानवरों के साथ डील कर रहे हैं, दे हैव जीरो नॉलेज। कोई एनिमल डॉक्टर, कोई कंसर्न पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बस उसने लाना है जानवर और उसने बस भाव लगाना है और बेच देना है, सिंपल उसका काम, ठीक है। सेकेंड, टेम्पररी अर्बन स्लॉटरिंग। ये जो हालात हैं ये वाले ना, कहीं भी गोश्त कट्टा शुरू इधर राइट साइड पे भी गाय है, लेफ्ट साइड पे भी गाय है। ये हालात अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देन फूड हैंडलिंग एट लार्ज स्केल। अच्छा, मेरा जो ये वाला मसला है ना टेम्पररी अर्बन स्लॉटरिंग, इससे ज्यादा मसला मेरा ये वाला है। मैं सही बात बताऊं, खवातीन भी बहुत कंटामिनेशन करती है अक्सर गोश्त के साथ ही, जो वो वेजिटेबल्स कट रही होती है। अभी मैं आगे स्लाइड भी मैंने डाली है जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से रिकॉल होगा, और आज जाने के बाद तो फिर इस ई बकरीद तो आप लोग गलतियां नहीं करेंगे जो यूजुअली करते हो। देन इंक्रीज एनवायरमेंटल एक्सपोजर, ये बकरीद की बात है। ये ओझड़ियां पड़ी हुई हैं, बह रहा है सब कुछ। वो अच्छा, अजीब बात ये कि इतनी गंदी फाउल स्मेल आ रही है। लास्ट टाइम तो मैंने देखा जो जानवरों के सर वगैरह थे वो तब, बारिश हो गई थी 2-3 साल पहले की बात है बकरे में, तो वो बह रहे हैं पानी के साथ लिटरली। और वो डेथ स्मेल में मुझे ना मसला सिर्फ गंदगी का नहीं है, उसमें जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो बीमारियां प्रोलिफरेट कर रही है ना, आप लोगों की सोच है वो क्या सैलाब लेकर आएंगे बाद में बीमारियों का, वो उस वक्त एकदम नहीं होगा। इट विल टेक 10 to 14 days एंड देन इन्फेक्शन। फिर आप आ जाएंगे इधर एनिमल इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट, इसकी वजह से हर बंदा घर में बीमार होगा। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जैसे आपने बताया, स्किन इन्फेक्शन होंगे और जीआई इलनेस। जी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का बिल्कुल रोल है। सेकंड ये कि जो हमारी एलर्जीज होती है ना वो भी हमें बहुत ज्यादा होती है, जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि जो उसके एनिमल का फर होता है उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। फंगल इन्फेक्शन, एस्थमा, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता। अब वो जो फ्ली होती है, टिपिकल फ्ली होती है उनके बिना, वो जो जू जैसे होती है ना, तो वो एनिमल की, तो क्या होता है बच्चे उसे एक्वायर कर लेते हैं। अब बच्चे इधर खुद आ रहे हैं उधर खुद आ रहे हैं, आपने नहला दिया कुछ कर दिया, बट मसला ये है कि जब आप एनिमल के साथ इंट्रैक्शन में आ रहे हो तो भाई तो फिर एनिमल। अच्छा, बाहर मुल्कों में या इवन अदर मुस्लिम कंट्रीज में प्रॉपर एनिमल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो जानवरों को भी चेक करती हैं, उनको भी वैक्सीनेशन उनकी प्रॉपर। इस तरह से कोई भी जानवर लाके कोई भी नहीं बेच सकता। यहाँ तो गलियों में लोग बकरे बेच रहे हैं, लिटरली बता रही हूँ, 2 बकरे। हाँ, तो ये कोई अथॉरिटी नहीं है। आप उससे पूछे आपके पास आपने ये जानवर कब कहाँ से लिया, मतलब ऑब्वियसली चलो उसका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उसको कोई डिजीज इलनेस तो नहीं है या कोई ऐसा कंटेजियस मसला तो नहीं है जो और जानवरों को लग सकता है, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी बीमारियां जैसे हमारी बीमारी ना। अब हम माइक्रोबायोलॉजिकल लेंस से इन सारी चीजों को देखें। सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली, स्टे हेल्दी डिसीज। सबसे पहले हमने क्या करना है, माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एनिमल कॉन्टेक्ट, डर्टी हैंड्स, क्राउडेड प्लेसेस, एयर एनवायरनमेंट, कंटामिनेटेड सरफेसेस। अच्छा, जो चीजें एनिमल के साथ इन कांटेक्ट में आती हैं, हम उनको हाथ लगाते हैं, फिर आते हैं, हम बहुत कम लोग हाथ धोए, बच्चों के हाथ धुलाए, पैर, मैं कहती हूँ इस तरह के डिस्पोजेबल शूज या क्रॉक्स टाइप के रखें जो बच्चे वहीं वॉश करें, बाहर आउट इसका टाइप का जो होता है, या वो घर में लेके पाऊं। सबसे पहले जो है ना, आपने वो पाऊं या जूते लेके घर में नहीं आना जो जानवर के पास खड़े होके आपने पहने लेते। सबसे पहली चीज ये निप इन द बट।
देन क्राउडेड एनिमल मार्केट, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड। ये बकरे इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, यही बकरे सारे, इनके साथ देख रहे हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत बैक्टीरिया भी है। ठीक है। एंड माइक्रोब यू कांट सी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। वॉश हैंड्स, वियर मास्क, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स, ये बहुत मुश्किल है, बच्चे का इतना दूर रहना बकरे से। कीप एरिया क्लीन, हैंडल फूड हाइजीनिकली, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड सीक मेडिकल हेल्प इफ अनवेल। नाउ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एंटी माइक्रोबियल स्टोरशिप वन हेल्थ कॉन्सेप्ट कहती है जिसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। एक साइड पे एनिमल है, दूसरे साइड पे ह्यूमन है, तीसरे साइड पे इन्वायरमेंट है। एनिमल को मैंने आपसे कहा रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए जो जानवर को भी चेक करें कि जानवर किसी बीमारी का, किसी मुझे बीमारी का शिकार तो नहीं है, और फिर जुए तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है उसको तो हमें हमारे लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है। फिर दूसरी तरफ ह्यूमंस हैं जो हम आज हम यहाँ बैठे हैं, इस बात करेंगे कि हम कैसे बच सकते हैं। चले फॉर एग्जाम्पल जानवर बीमार आ गए, पूरी मंडी में सारे जानवर बीमार हैं, किसी के जो है कुछ जो मसले हैं सारे, तो अब हमें कैसे बचना है, ये बात होगी ह्यूमंस के साइड पे। एंड तीसरा होगा एनवायरमेंट। जब ये सब चीजें आप एनवायरमेंट में डंप कर देंगे ना, तो एनवायरमेंट पे एक अदर सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और ये तीनों चीजें मिलकर क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस किस पे डालेंगी, एंटीबायोटिक्स पे। मैम आप मुझसे पूछ रही थी ना एंटीबायोटिक्स का, एंटीबायोटिक्स का इन्फ्लुएंस इन तीनों चीजों से, एक जानवर, एक इंसान और एक एनवायरमेंट। और ये तीनों चीजें डायरेक्टली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को इम्पैक्ट कर रही हैं। अभी आज थोड़ी देर पहले इस सेशन से पहले मेरी मैडम से बात हो रही थी और यही बात हो रही थी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन पहले कितना काम करती थी। कितने लोगों ने सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज किए, इतने सारों ने, ये वही लोग हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस बढ़ाई। अच्छा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वो एंटीबायोटिक हुआ करती थी जो टाइफाइड के लिए चॉइस ऑफ ड्रग होती थी, और अभी भी यूके यूएसए प्रोटोकॉल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सैनफोर्ड गाइड इट इज द चॉइस ऑफ ड्रग इन वेस्टर्न कंट्रीज। पाकिस्तान में मसला क्या, पेट में दर्द हुआ सिप्रो खा लो, सिंपली सिंपली, मतलब कुछ भी, अरे वायरल हो सकता है कोई और, मतलब सिंपल फ्लू, नजला, उसको इतना ओवर द काउंटर सेल कर दिया, उसको इतना वो कर दिया क्योंकि हमने इन तीनों चीजों का ख्याल नहीं किया। हमने कहा कोई मसला नहीं, बीमार हो दवा खा ले। अब दवाओं ने भी काम करना छोड़ दिया, सिंपल बात है ना। और दवाएं कैसे काम करेंगी, मिस यूज और रेजिस्टेंस ने बैक्टीरिया को इतना गुस्सा दिला दिया, ये बात। ओके, हिडन पाथवेज ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले एनिमल्स में कैरी जर्म्स विदाउट शोइंग साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को भी बात बताए। लोगों का ऐसा मानना है कि जानवर बीमार होगा, ड्राउजी होगा, छींके मार रहा होगा बकरा तो वो बीमार होगा, ऐसा नहीं है। बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे हम लोगों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और ड्यूरिंग दैट इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम इन कांटेक्ट आएंगे उस जानवर से, तो कुछ बीमारियां, मैं भी आप लोगों को आगे भी बताऊंगी, वो बीमारियां हमें भी एक्वायर होता है। ठीक है। सेकेंड, आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया ड्यूरिंग स्लॉटर एंड ट्रांसफर हार्मफुल जर्म, कोई ऐसा जर्म जो उसकी बॉडी या ब्लड में था, जब आपने काटा, जानवर ज़िबा किया, तो उस वक्त वो खून के जरिए वो जानवर आपकी बॉडी में कट लगा होता है, वो आपको एक्वायर होता है, वो बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन आपको एक्वायर होता है। सेकेंड, ब्लड वेस्ट एक्सपोजर। ये तो मैं, आपने देखा है फ्लाइज, स्टूल, फिर वो सारा ड्रेन में नाले बह रहे हैं, गटर बह रहे हैं, फिर उसमें वो सारा जो वेस्ट होता है। अच्छा, मैं इस पर हैरान होती हूँ कि जो वहां पे एनिमल कटा, एक तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, कोई कहीं भी जिबा कर लेगा, बस दरवाजा खोला और जानवर जिबा। फिर सेकंड 3 दिन तक उसका खून वो पड़ा सूखता रहेगा, मक्खियां भिनकती रहेंगी, स्मेल आती रहेगी, वो स्मेल बहुत सारे बैक्टीरिया को प्रोलिफरेट करा रही है। फिर वही पाँव लेके हम घर में आएंगे, ठीक है ना, हम तो आएंगे ना, उसी रास्ते से होकर आएंगे हम, और फिर क्या होगा, वही वही बैक्टीरिया हमारे घर में एंटर हो जाएंगे। एंड सेकंड, किचन कंटामिनेशन, इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, कुछ कितने कितने लोग, कौन कौन लोग हैं, खवातीन, वैसे तो जेंट्स भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आजकल तो जेंडर इक्वालिटी का जमाना है। कौन लोग हैं जो फॉरेन बकरे ईद का गोश्त है वो खाना बनाते हैं, बड़ा, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको होता है बस जैसे ही आए ना बस फौरन ताजा ताजा गोश्त बनाते हैं, और कुछ होते हैं जो कहते नहीं, हाँ, और भाई लड़के बता सकते हैं अगर बनाते हैं, कोई वो नहीं है। आजकल तो बहुत बहुत इन्हें कुकिंग करते हुए, आजकल तो एड में भी लड़की कुकिंग कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कमर्शियल में लड़की में, हाँ सीरियसली। अच्छा देखिए, मसला सारा ये होता है, हमारा किचन जो है ना, जो 1 किलो गोश्त बियर करता है, कितना, 2 किलो गोश्त बियर कर रहा होता है, अब उसके ऊपर में पूरा बकरा आ जाता है, वहां छुरी पड़ी है, वहां प्लेट पड़ी है, वो कह रहा है उससे वो थैली पास करो, वो इधर बच्चे भाग रहे हैं, इधर वो भाग रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा किचन है उसके यूटेंसिल्स भी कंटामिनेट हो जाते हैं। और लिटरली सबसे पहली बात, हमें छुरी से लेकर, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो सैलेड और मीट,
एक ही छुरी से काटते हैं। आज ही मैंने अपने टेक्नोलॉजिस्ट से पूछा, मैडम मैं तो एक ही छुरी से काटती हूँ, बार बार छुरी थोड़ी यूज करेंगे। बेटा बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो वेजिटेबल इज द ओनली थिंग जो आप रॉ कंज्यूम करते हो। कभी खीरा पका के खाए? ऑब्वियसली नहीं। और बड़ा माइंडसेट होता है यार, इतना गोश्त खा रहे हैं, अब एक प्याला सैलेड और 2 कटोरे ग्रीन टी भी पी लेते हैं। वो जो ग्रीन टी है ना, उसमें बैक्टीरिया नहीं डालने। आप लोगों ने किचन कंटामिनेशन का बड़ा ख्याल रखना है, खास तौर पे जब गोश्त आ रहा है। मुझे पता है लोड होता है, तो आपने ना काउंटर अलग कर दो, यूटेंसिल्स अलग कर दो, और मैं तो क्या करती हूँ, डिस्पोजेबल कोई चीज बिछाओ, कोई पेपर प्लास्टिक शीट टाइप की, जिसमें जो ब्लड ड्रिपिंग होता है ना, वो उसी पे गिरे, ताकि हम उसको डिस्कार्ड कर दें बाद में। ठीक है, या फिर अपने यूटेंसिल्स आप वॉश कर सकते हो, तो आप उसको डी-वॉश कर। सेकंड फिर क्या होगा, जर्म सेंटर हो जाएंगे और कैन एंटर द बॉडी एंड कॉज इट। Now these are the infections in the bacteria between we have brucella. Brucella infection खास स्पेसिफिक होता है, जो काउ से होता है और इनसे होता है, कैटल से होता है। अभी हमारी लैब में अभी रिसेंटली भी ब्रुसेला के दो केसेस आए हैं, और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। अच्छा होगा क्या, गॉड फॉरबिड, अगर हम में से किसी को एक्वायर हो गया, अभी हमें कुछ नहीं होगा, कोई 3-4 महीने 40 डेज तक, कभी कभी तो 6 महीने बाद हमें लो ग्रेड फीवर स्टार्ट हो जाएगा, फिर लिवर बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्प्लीन बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि भाई समझ नहीं आ रहा कौन सी बीमारी है, वो यही बीमारियां होती हैं जो हमने जानवरों से एक्वायर कर ली होती है, हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही होती है। फिर साल्मोनेला, टाइफाइड, सबका पता है आजकल वैसे ही टाइफाइड इतना कॉमन है। फिर ये जो एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर बेसिकली मीट से ही टाइफाइड जाता है, तो इनकी जो मीट है इसमें भी साल्मोनेला टाइफाइड का जरासीम छुपा हुआ है, और जो कि हमने सही से पकाया नहीं है, उसको एक्वायर कर लिया। जैसे कैंपाइलोबैक्टर है। अच्छा कैंपाइलोबैक्टर तो वैसे चिकन से होता है, इसके बारे में कहते हैं कि जो ये बारबेक्यू फूड्स होते हैं ना, जो कि स्मोक्ड ग्रिल्ड होते हैं, बेसिकली दे आर नॉट प्रॉपरली कुक्ड। वो पता नहीं कौन मुझे कह रहा था, मैडम हमारी अम्मियां तो इतनी बुनाई करती है, हल्दी मिर्च डाल के सारी बैक्टीरिया की जान निकल जाती है। तो वाकई कुछ हद तक वो कॉन्सेप्ट सही है। हमारी जो डिशेज हैं वो बैक्टीरिया को एक खास टेम्परेचर पे किल कर देती है। बट जैसे कि हंटर बीफ है, मैं डिशेस भी बताऊंगी, या जैसे रोस्टेड बीफ होता है, जो स्पेसिफिकली शॉर्मा टाइप का मीट नहीं होता जिसमें हम कट्स ले रहे होते हैं ना, अब वो कितना कुक्ड होता है, वो दैट इज नॉट दैट मच कुक्ड, तो उससे स्पेसिफिकली कैंपाइलोबैक्टर और पैथोजेनिक ई कोलाई जाता है। देन वायरल में हमारे पास क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, इस पे हम बात करेंगे, आजकल काफी आपको पता होगा। एंड पैरासिटिक डिजीजेज, ये तो कमी होती है, हाइड्रेटेड सिस्ट होती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है, इसमें हमारे लिवर में ब्रेन में सिस्ट हो सकती है, ये लेस कॉमन। क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, ये जो टिक है ना, इस टिक ने, आपको मैं एक बात बताऊं, अभी जब मैंने पीपीटी बना रही थी, मेरे अपने ने मुझे कहा लेक्चर, उस दिनों में ही मेरे पास पिक्चर आई है, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा, उसके हाथ पे वो टिक मिली है ये वाली, और उसने पिक्चर भेजी, उसने कहा ये वही टिक है, और फिर वो पिक्चर हमें हमारे इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास आई, और हमने कहा हाँ ये आइडेंटिफाई किया वो टिक है, क्योंकि ये टिक जो है ना एक जू से मिलती है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है कि ये बहुत छोटी होती है। एंड व्हाट हैपेंड कि अब वो पैनिक हो रहा है, पर अब मैंने कहा एक नहीं होगी, जानवर पे होंगी। अब मसला ये है कि जब टिक बाइट करेगा ना, तो अगर उस जानवर को कोई भी बीमारी थी, तो वो जैसे मच्छर होता है ना कि वो उसका खून लेकर आपकी बॉडी में ट्रांसफर करता है, इस तरह वो टिक आपको ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज कर देगी। क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग है, पेशेंट बहुत मुश्किल ही बचता है, और सारे बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बुचर्स, फार्मर्स, वेटेरियंस, स्लॉटर हाउस वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स ये ज्यादा इन कॉन्टेक्ट होते हैं, क्योंकि टिक्स जो होंगी, अच्छा हाँ, मुझे कोई पूछ रहा है सारी टिक्स जो है वो क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर कैरी करी होंगी, तो सारी टिक्स नहीं करी होंगी, लेकिन टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि एक बात और, टिक जो होती है ना, वो जू की तरह ना आपकी बॉडी में थोड़े दिनों के लिए अंदर जाके बैठ जाती है, थोड़ा सा रैप पैच होगा, और जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जैसे ना सुई से कोई चीज परोते हैं ना, उस तरह से वो आपकी बॉडी से वो निकालेगी, और क्योंकि वो 48 घंटे से 72 घंटे से आपकी बॉडी में बैठी होगी अंदर जाके, तो उसमें यकीनन खून भी चूसता होगा, तो मतलब एक दफा डॉक्टर के भी माइंड में और आपके माइंड में बात आएगी कि कहीं वो क्रीमियन कॉन्गो वायरस को कैरी तो नहीं कर रही। सही है, तो टिक से आपने बचना है, बच्चों के पाबंदी से हाथ धुलाएं और उनको चेक करें। इसके लिए मैं तो कहूंगी बच्चे जो बहुत ज्यादा जानवरों को हाथ लगाते हैं, तो एक तो ये कि एक्सपोज उन्हें कपड़े नहीं पहनाएं बहुत ज्यादा, पैर हाथ, अब इतनी गर्मी है आपको पता है, लड़के भी मतलब बहुत ज्यादा तो हम फुल स्लीव नहीं पहना सकते, इतनी गर्मी में बच्चे जानवर के साथ होते हैं, तो उनको टिक के लिए चेक करें, क्योंकि ये बहुत छोटा सा इसका साइज होता है, मैं दिखाती हूँ, ये साइज होता है, पत्ता देख रहे हैं इसके साइज पे, और ये इस ऐसे पैचेज बन जाते हैं, एक्सरसाइज आप देखिए,
हमारी उंगली की पोर से भी छोटा साइज होता है, मतलब लाइक किसमें कैट, वो कैट्स में जो होती है ना टिपिकल टिक नहीं होती, टिक की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। इसके जो ये प्रीमियम कॉन्गो हेमरेजिक फीवर की स्पेसिफिक टिक है ना, वो फ्लीज होती है, वो फ्लीज होती है। टिक इज डिफरेंट फ्रॉम फ्ली, वो बहन भाई है समझे एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ आ गया। टिक का साइज जो है ना लोग समझते हैं, क्योंकि लोगों ने पिक्चर ये वाली देखी होती है, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा सा कीड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका साइज ये होता है, आप इसको यहाँ से साइज को मेजर कर सकते हैं कितना छोटा है, ठीक है। मिस हो सकती है आराम। ओके, फूड सेफ्टी ड्यूरिंग ईदर, ये खाने जानवर कट गया उसके बाद की बातें आ गई। रॉ मीट, चॉपिंग बोर्ड, रेफ्रिजरेटर एंड कुक फूड। खवातीन जरा मुलायदा फरमाएं, ये चार जगह हैं जहां से हमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। सबसे पहले रॉ मीट। अच्छा, मुझे नहीं पता, कुछ टाइम से मैं नोट कर रही हूँ, कुछ हमारी जो स्पेसिफिक डिशेज है उसमें भी अंडर कुक मीट खाने का थोड़ा सा रिवाज हो गया। स्टेक्स बहुत अच्छा, उस दिन पता नहीं कहीं हम स्टेक खाने गए थे, मैंने कहा तो बिल्कुल ही लग रहा है कच्चा गोश्त है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए जो गोश्त प्रॉपरली कुक्ड होगा ना उसमें चांस ऑफ इंफेक्शन अगर 10 था तो 0.1% है। लेकिन अंडर कुक्ड मीट या लेस कुक्ड मीट क्या करेगा, आधे व्यक्ति का मर जाएंगे, बाकी और ताकतवर हो जाएंगे। तो बिकॉज तो रॉ मीट बहुत खतरनाक है। सेकंड, चॉपिंग बोर्ड जो हम यूज कर रहे होते हैं, प्लीज इन चॉपिंग बोर्ड से इन नाइफ पे वेजिटेबल्स कट नहीं करें, इनको प्रॉपरली वॉश करें और इनके ऊपर कोई और किचन का यूटेंसिल यूज नहीं करें। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, यही छुरी उठाई, चॉपिंग बोर्ड उठाया, वहीं पानी उबल रहा है, वहीं बच्चों की फीडर उबल रही है। मैं लिटरली बता रही हूँ, किचन के ये हालात होते हैं, उधर गोश्त रखे हैं उधर पानी। या तो थोड़ा सा काउंटर सेपरेट करें, या मैंने कहा कि डिस्पोजेबल चीजें यूज करें। अगर नहीं कर सकते तो पहले लेट दिस डू दिस वर्क और उसको इससे सेपरेटेड रखें, मिक्स नहीं करें। रेफ्रिजरेटर्स बेचारे अभी क्या हाल होने वाले हैं उनका कुछ दिनों में एंड देन कुक्ड फूड। कुक्ड फूड से हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी कुक्ड फूड से बहुत कम हमारा वो है, लेकिन कुछ डिशेस हैं जो मैंने मेंशन किया वो कुक फूड से भी हमें इन्फेक्शन एक्वायर होता है। Now, this is the food safety during Eid. The kitchen है ना temporary microbiology lab. हमारी जो kitchen है ना, हमारा kitchen है during the laboratory during the Bakr Eid, वो हमारी लैब की तरह। आप सब भी लैब में काम करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ना हालात वही हो जाएंगे। अगर हम इस साइड काम सही नहीं करेंगे ना तो ये वाले हालात हो जाएंगे। या ब्लू लाइट में अगर देख रहे हैं बैक्टीरिया, ये ग्रीन, ये सब चीजें, ये फूड क्लीन किचन सेफ फूड हेल्दी खाना। तो इस साइड से हम इस साइड आने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। प्रिवेंटिंग प्रीमियम कॉन्गो हेमरेजिक फीवर ड्यूरिंग ईद उल अजहा। काफी लोगों का ये सवाल होता है कि प्लीज काइंडली हमें ये बताएं कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि ये मसला ये होता है कि टिक का साइज है, बच्चों को बताना है, चीजें हैं, उसके बारे में मैंने कुछ स्लाइड डाली। बाय एनिमल्स फ्रॉम क्लीन रेगुलेटेड मार्केट, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई क्लीन रेगुलेटेड मार्केट किसी ने देखा है? पहले कुछ मंडियां लगती थी कुछ रेगुलेटेड सी, जहाँ बड़े साफ सुथरे जानवर होते थे, पिंक पिंक गाय होती थी लोग जाके सेल्फी वगैरह बनाते थे। अब बेसिकली कराची में ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्राउडेड होने का बहुत मसला है, और क्राउडेड एनिमल्स, ह्यूमन एनिमल, एवरीथिंग वाज सो क्राउडेड कि मैनेज नहीं कर पा रहे लोग। वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे, हम भी मैनेज नहीं कर पा रहे, बंदे में बंदा चढ़ा होता है। क्योंकि मसला क्या होता है, आप जा रहे हैं, जानवर भी उसको भी बेचना है, तो आपने भी खरीदना है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपने भी खरीदना है। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद सिक लुकिंग एनिमल्स, ठीक है। वियर ग्लव व्हाइल हैंडलिंग एनिमल्स इफ पॉसिबल, इतना हम कर सकते हैं। वो जो प्लास्टिक के सिंपल ग्लव्स आते हैं ना, सिंपली बात है, मैं तो कहूंगी बच्चों से बोले प्यार करें, वो ग्लव्स पहना दें, एटलीस्ट टिक से तो वो प्रिवेंट हो जाते हैं। देन वियर फुल स्लीव्स एंड कवर शूज, ये बात मैंने बताई थी। पाउओं से खास तौर पे फ्रॉक्स होते हैं जो आगे से बंद होते हैं, जो ज्यादातर हॉस्पिटल सेटिंग्स में डॉक्टर्स यूज करते हैं, इस तरह के शूज जो वॉशेबल होते हैं वो यूज करें। एंड चेक एनिमल्स फॉर टिक्स ड्यूरिंग स्लॉटर, यूज प्रोटेक्टिव ग्लव्स, मास्क एंड वाटरप्रूफ एप्रन। अच्छा, अब तो प्लास्टिक शीट टाइप की मटेरियल्स आते हैं। अब वो मैं देख रही थी एडवर्टाइजमेंट बड़े आ रहे हैं कि वो गोश्त बनाने के लिए भी आते हैं, और एप्रन पहनने का भी थोड़ा रिवाज कुछ पिछले सालों में बढ़ा है। तो कोशिश करें कि जो भी लोग मीट के काम में इंडल्ज हैं उसका कोई और काम ना करें। सेकंड, थोड़ा सा इसका ख्याल करें। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू बॉडी एंड ब्लड फ्लूइड्स, ये तो बहुत मुश्किल है। कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्लॉटर एरियाज, प्लीज प्लीज। ये बच्चों को समझ नहीं होती, वो हाथ इधर उधर लगा देते हैं, वॉश नहीं करते। इंश्योर स्लॉटरिंग इज डन इन ओपन क्लीन वेंटिलेटेड स्पेस, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्लोज स्पेस में होगा, ओपन स्पेस में उतना नहीं होगा। एंड देन कवर द कट्स और वुंड्स ऑन हैंड बिफोर हैंडलिंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने देखा है छुरी से कट आ जाता है और उसी हाथ से आप गोश्त बना रहे होते हो। गोश्त के अंदर ऑलरेडी 4 बैक्टीरिया है। जब आपका हाथ किसी भी वजह से कट गया, अच्छा एक कट नॉर्मली किचन में कट आना या किसी ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर हाथ थोड़ा बहुत सबका कट जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक स्मॉल कट भी ना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वो पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकता है फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया कहाँ पे मौजूद होंगे? वो बैक्टीरिया स्पून में और वो एनिमल्स के ऊपर मौजूद। Meat handling and kitchen safety. Wash hands through thoroughly with soap after handling raw meat. Use separate knives and boards for raw meat. I am again telling you, ये जो बात है ना यूजुअली लोग नहीं फॉलो करते। मैं सही बात बता रहा हूँ। सेपरेट चॉप बोर्ड, सेपरेट नाइफ आपने यूज करनी है। आप उसको जब तक गोश्त का काम खत्म नहीं हो आप उस पर कुछ और नहीं को यूज करें। देन प्रॉपरली कुक मीट बिफोर ईटिंग, ठीक है, यूजुअली उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। एंड अवॉइड लीविंग एनिमल वेस्ट एक्सपोर्ट्स। वेस्ट डिस्पोजल एनवायरनमेंट, डिस्पोज ऑफ ब्लड टिश्यूज, एनिमल वेस्ट सेफ्टी। अच्छा अब मुझे ये पूछना है, आप लोगों के पास एनवायरनमेंट में कहाँ पे ओजरी और ये सारी चीजें जो एनिमल वेस्ट होता है प्रॉपर डिस्पोजल किस किस के एरिया में होता है? आइडियली तो ये हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज और गवर्नमेंट का काम है। और किन के यहाँ नहीं होता वो भी प्लीज बता दें। होता ही नहीं होता है? होता है। मतलब जैसे आप अगर वो एनिमल वेस्ट जो अगर छोड़ते हैं तो नेक्स्ट डे आपको साफ मिलता है। और वो आजकल तो चूना वगैरह भी वो कर देते हैं ना। तो और कुछ जगह होती है जहाँ काफी कंप्लेंट्स आती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जो भी आप लोग यूसी काउंसलर हैं, देखें आपने पर्सनल एफर्ट भी करनी है तो कोशिश ये करें, उनसे करें कि भाई देखें ये साफ साफ करवाएं, उनका काम है। इंडिविजुअल हर बंदा एफर्ट करेगा देन ये एनिमल वेस्ट डिस्पोजल हमारा अच्छा होगा। प्रिवेंट द फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स अराउंड पेस्ट एरिया। फ्लाइज इंसेक्ट्स को तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसका तरीका है उसकी सफाई रखें। एंड क्लीन स्लॉटेड एरियाज विद डिसइंफेक्टेंट ब्लीच सॉल्यूशन। वो जो चूना होता है ना वो डाल देते हैं, वरना अगर ब्लीच लिक्विड ब्लीच। अच्छा हाँ, किचन में भी जिस एरिया में आप काम करें कोशिश करें कि थोड़ा सा हल्का सा ब्लीच के साथ, या जो बहुत सारे ऐसे किचन क्लीनर सब आते हैं जिनके अंदर ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, उनका स्प्रे कर कर उसको वाइप ऑफ करें, देन वहां कुछ और कट करें, खासतौर पर रॉ वेजिटेबल्स। अब रियलिटी दिखाऊंगी मैं। ये तो हो गई ये बात है, अब हम बात करेंगे पीछे वाली ये रियलिटी है। यही हो रहा है ना। देखिए, traders unload a cow from a truck at a cattle market set up for Eid al-Adha in Karachi on 2020। बेचारे जरा काव के हालात देखें, नीचे जरा सफाई का लेवल चेक करें आप, ऊपर से वो जंप मार रही है सेकंड सेकंड रियलिटी, ये हालात होंगे ड्यूरिंग स्लॉटर। आपकी अगर मैं कहती हूँ ना, अगर मैं यहाँ से कल्चर सैंपल लूँ ना तो किसी पेशेंट के स्टूल में इतने ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे ना जितना यहाँ पे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना इन्फेक्शन का रिस्क यहाँ पर है। इस पिक्चर से मुझे सेंस हो सकता है कि हाउ मच इन्फेक्शन अ पर्सन कैन। ये है रियलिटी। रियलिटी है ना ये अभी के रिसेंट बकरे की पिक्चर्स लिए हैं मैंने, अभी वाली की तो आई नहीं तो दिस इज द रियलिटी। तो हमने क्या करना है, हमने ये चेन ब्रेक करनी है, ठीक है। When waste becomes a public health threat, blood disposal, open waste accumulation, fly infestation, brain contamination, waterborne diseases। देखिए मतलब क्या होता है कि जब आप ये हालात कर देते हैं ना कि हर चीज जो है ना वो डंप हो रही है, तो वही पानी हमारे नलों में आएगा, या टैंकर माफिया वही पानी लाके हमारे टैंकर में डाल देगा। कुछ दिन बाद, अभी नहीं, 2 महीने, महीने, 3 महीने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, टाइफॉइड, विब्रियो, कॉलरा, कॉलरा सादिया याद है। हम तो कल्चर करते हैं तो हम उस एंड से देख रहे हैं, इतनी बीमारियां होती हैं कि समझ नहीं आता कि हर बंदे को। और लोग समझते हैं हमारा गोश्त खा के ना हमारा पेट, गोश्त खा के नहीं हो रहा, हमने ये खुद किया हुआ होता है, ये इन्वायरमेंट को हमने कंटामिनेट किया हुआ। तो द हिडन एएमआर कनेक्शन। अब बात करेंगे हम कि इसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक से क्या कनेक्शन है। ये सारी बातें तो बकरी के एस्पेक्ट से हो गई, आई थिंक आप सब क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात किसी ने पूछनी है? ठीक है, अब हम हिडन एएमआर कनेक्शन की बात करेंगे। हिडन एएमआर कनेक्शन ये है कि देखिए एनिमल्स जो हम कंज्यूम करें ना उसको भी एंटीबायोटिक्स मिलते हैं बहुत सारे हमारे, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है। तो जब वो जो व्यापारी होते हैं वो देखते हैं ना कि ये एनिमल सिक हो रहा है उन्हें, तो उसके दाम लगवाने हैं ना, तो उसको ना मतलब वो 3-4 एंटीबायोटिक्स हैं, क्लोरामफेनिकोल है, कॉर्टिसोल है, जो एनिमल्स में इतनी यूज हो रही है, इतनी यूज हो रही है कि जब हम गोश्त खा रहे हैं ना तो हम एंटीबायोटिक भी खा रहे हैं। हम एंटीबायोटिक गोश्त के साथ खा रहे हैं क्योंकि वो एंटीबायोटिक उसके अंदर रहेगी, और वो उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और बेचारी गाय तो नहीं बोलेगी ना कि मेरी वेन नहीं मिल रही है, नहीं इधर नहीं, मुझे इधर लगा दो, या मेरा ब्लड टेस्ट कर लो। गाय तो बेचारी खड़ी है, अब उसको लगा ये सिक है तो उसने एंटीबायोटिक दे दी। बहुत दफा
वो जो एनिमल होता है वो उस एंटीबायोटिक का हकदार नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस ओवर यूज ऑफ एनिमल एंटीबायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब आपने क्या किया, फूड चेन के अंदर बैक्टीरिया आए, हमें इन्फेक्ट किया और उससे क्या हुआ, मोर एंटीबायोटिक। अब ये साइकिल चल पड़ा। कैसे साइकिल चल पड़ा, जानवर को गलत एंटीबायोटिक देने की वजह से आज हम पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि वही बैक्टीरिया जिसने उस जानवर को इफेक्ट किया था, जब हमें इन्फेक्ट करा, वो कह रहे यार इससे तो मैं मिला था उसकी काऊ के बॉडी में ये से तो नहीं मरूंगा मैं। सारा चक्कर ये है। और हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड में उस एंटीबायोटिक्स की अच्छी खासी मिकदार है। एक रिसर्च थी जिसमें बात आई थी कि जो फिश है ना उस तक में इतनी एंटीबायोटिक्स होती है, छोटी वाली मछली होती है ना उसमें इतनी एंटीबायोटिक की डोजेस इतनी एक वायल ऑफ इंजेक्शन में होती है। आप अंदाजा लगाएं, आप सोचें आप एक इंजेक्शन लगवाने से पहले कितनी दफा सोचते हैं कि यार क्या साइड इफेक्ट होगा, डैमेज तो नहीं करेगा, कमजोरी, तो 10 सवाल डॉक्टर से करते हैं, 10 दफा वो आपको जवाब देता है, फिर भी शायद आप कन्विंस ना हो, लेकिन आप फिश बड़े आराम से कंज्यूम कर लेते हैं, आपको पता नहीं उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक है। दिस इज द वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, एक तरफ एनिमल, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट, तीसरी तरफ ह्यूमन हेल्थ। तो बकरा ये डिमॉन्स्ट्रेट्स व्हाई माइक्रोबायोलॉजी मस्ट मूव बियॉन्ड पेट डिशेस। तो हमको जो है ना इन तीनों उसके ऊपर काम करना है। ये एक तरफ बेचारे गाय बकरे हैं, हम हैं, और तीसरी तरफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, नाउ फ्रॉम फार्म टू द फैमिली सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, बेचारी गाय है, उसकी भी, उसका भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। नाउ पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। सबसे पहले ग्लव्स पहनने, हैंड वॉश करना है। कोई भी वुंड होगा आपने सैनिटाइज रखे और अल्कोहल स्प्रे रखे, हल्का सा अल्कोहल स्प्रे करें, सैनिटाइज लगा रहे। अगर कोई बड़ा कट लग जाता है, अक्सर जेंट्स जो इंडल्ज होते हैं स्लॉटरिंग एक्टिविटीज में उनको भी कट्स लगते हैं। अच्छा, वो कट्स जो है ना बड़े अननोटिस्ड होते हैं, हाँ वो कट गया था हाथ, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था, लेडीज भी काम कर रही होती हैं, छुरी पर वो बेचारे बड़े बड़े ना ऐसे औजार निकले होते हैं जिनका कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया होता है, उससे गोश्त बनवाते हैं, बड़ा शौक होता है, मुझे बड़ा शौक है। तो अब उससे हाथ भी कट जाता है, जब आप पूरा साल वो इस्तेमाल नहीं करेंगे बड़ी वाली छुरी, तो फिर हाथ तो कटेगा। तो आपने फौरन वो वूंड को कवर करना है। देन रेफ्रिजरेटर, अच्छा हाँ एक बात और, रेफ्रिजरेटर ना पहले जरूर साफ करें और थॉ कर लें उसको। साफ, जो बर्फ बहुत ज्यादा बर्फ होगी ना जब वो पिघलती है ना, तो उससे जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है ना उसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करते हैं। पहले आपने उसको गर्म किया, फिर आपने उसको ठंडा कर दिया, फिर आपने फिर गर्म कर दिया, फिर आपने फिर ठंडा कर दिया। अब ये तो मसला है लाइट जाने की वजह से होता है बहुत दफा। तो यूजुअली आपके फ्रीजर फ्रिज जब आप मीट स्टोर करें साफ होने चाहिए। देन ये बहुत बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि वेजिटेबल्स और मीट दोनों अलग अलग, कटेंगे भी अलग, पकेंगे भी। मतलब आपने जब मीट का काम करने के बाद वेजिटेबल्स का काम करना है अलग, चॉप बोर्ड अलग है। देन आपने डिस्पोजल सही करना है और एंटीबायोटिक्स मिसयूज। Now, why GI infections increase during Eid? Improper storage, repeated thawing and reheating, क्रॉस कंटेमिनेशन इन किचन की। देखें खीरे और सलाद रखे हुए हैं, उसके साथ ये रखा है गोश्त, ये खीरे सलाद अपने पकड़ा दे रहे हैं, इसको तो पका लेना है, ये कच्चा खा रहे हैं। ठीक है, अनहाइजीनिक मील हैंडलिंग, कंटेमिनेटेड वाटर एंड सरफेसेस। पानी का इस्तेमाल देखा है अक्सर, जो कसाई होते हैं उनको पानी की बोतलें लोग दे रहे होते हैं, अब वो खून के हाथ वो पानी वो दिए पानी पी रहे, मतलब लिटरली मैंने तो लास्ट टाइम बॉटल दी, उस बॉटल को हालत देख के मैंने कहा इसका क्या हाल बताया है। और ये कॉमन है, ये मैं वो बातें कर रही हूँ जो जर्नल है, अभी आप लोग खुद देखेंगे, कुछ दिन बाद देख रहे होंगे, और ये होता है। तो जो पानी है ना इससे बहुत जल्दी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है। देन लार्ज स्केल फूड प्रिपरेशन, डिलेड रेफ्रिजरेशन। कोशिश करें गोश्त को, अच्छा कितने लोग हैं जो गोश्त धोते नहीं है, कोई है ऐसा? काफी लोगों को ऐसा है कि गोश्त धोते, ऐसा तो कोई नहीं है ना। अच्छा, हमारी एक कुलीग है, उनसे हमारी कुछ दिन पहले बड़ी बहस, वो कहती है गोश्त धोने से ना उसके जूसेस खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाके हालात करेंगे उनका क्या होगा। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है लोगों का, कोई है तो बता दे, कोई है ऐसा? नहीं ना, गोश्त तो सब धोते हैं ना, हाँ गुड। तो धोना चाहिए और उसको रेफ्रिजरेट करेगा फिर। नहीं कुछ, नहीं नहीं, कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि वो जो उसके वो जो एक्सट्रैक्ट और जूसेस जो उसका जो अरोमा है वो बड़ा, बड़ी लंबी हमारी बहस चली अभी कुछ दिन पहले लैब में कि नहीं नहीं वो तो जरूरत ही नहीं होती, वो तो पक जाता है तो सब बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे लोग बटर हमारे को मंगा के पीले पका के, ऐसे कुछ नहीं होता। यू हैव टू वॉश, जो चीज वॉश करने से जाएगी वो वॉश करने से जाएगी। ठीक है, and increase exposure to foodborne pathogens. Festive meals can silently become the sources of infection without proper food safety. ठीक है, खाएं टिक्का बोटी सीख कबाब लेकिन ख्याल से। Now पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग बकरा ईद, हाई जूनोटिक इन्फेक्शन बर्डन। हमारा जूनोटिक इन्फेक्शन बर्डन ज्यादा क्यों है, मुझे कोई जवाब दे।
रेगुलेशन नहीं है, बिल्कुल कोई रेगुलेशन नहीं, ठीक है। ओवर क्राउडेड हेल्थ केयर सेटिंग्स, ठीक है। सैनिटेशन वेस्ट डिस्पोजल गैप्स हैं, डिले डायग्नोसिस एंड रिपोर्टिंग, ये भी बड़ा मसला है। एम्पायरिकल एंटीबायोटिक मिसयूज, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं कि इतनी पब्लिक अवेयरनेस है, अगर बताएंगे नहीं तो आप लोग उसको ओबे कैसे या उसको फॉलो कैसे करेंगे। अनसेफ एनिमल हैंडलिंग प्रैक्टिस, प्लीज बच्चों को बोले जानवरों के मुंह पे हाथ ना लगाए, ये चिपक चिपक के सेल्फियां ले रहे हैं बच्चे। अच्छा पता है मुझे तो थोड़ा सा ये भी होता है, ठीक है उनका टाइम है वो एक वो है, लेकिन एटलीस्ट अब बच्चों को भी थोड़ा काउंसिल करें बिठा के कि देखिए बेटा इनमें डिजीजेज हो सकती हैं, ग्लव्स बच्चे पहन सकते हैं, वॉशेबल शूज बच्चे पहन सकते हैं, और जब आए हैंड वॉश करें, उस हाथ से पानी ना पिए जिससे जानवर को छुए। एंड लास्ट, direct exposure to blood and tissue. Pakistan does not just need more microbiology, it needs smarter microbiology. तो बस ऐसी वाली गाय मिली किसी को लोड है हमारी गाय। Okay, take home message, the safest eat meal begins with the hygiene, not spices. This is very important. जो शान मसाले है ना उससे आपकी सेफ ईट नहीं बनेगी, मील सेफ ईट बनेगी, दिस अवेयरनेस। A joyful celebration can quickly turn into a preventable infection. Stay vigilant, stay safe, this is उसका। अभी ये हालात हो जाएंगे, ठीक है। During the bacterial. Celebrate responsibly, think microbiologically, wear protection, hand hygiene, separate raw, chewy food, cereal, dispose responsibly, use antibiotics. Small precautions prevent large outbreaks. Any questions? क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन करूंगी इसलिए पूछ रही हूँ। Any questions? हाँ, मीट को वॉश करके, हाँ हाँ, मैं यही सवाल जानना चाह रही थी, इसीलिए मैंने 10 दफा पूछा कि कौन है जो गोश्त ले। अच्छा देखो एक्चुअली जो एक एक दो लॉजिक्स हैं। एक लॉजिक ये है कि जब आप मीट को वॉश करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ द स्प्लैशेस ऑफ वाटर बैक्टीरिया जो है ना उस ड्रेन पे चीजों पे लग जाते हैं और वो क्यों करते हैं। आपको एआई भी यही बताएगा, इवन रिसर्चेस भी यही कहती है, लेकिन मेरा मसला ये है कि हम जाते हैं फिर स्लाइड पे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। आपका जो आंसर है ना वो इस स्लाइड में है, और एक और भी इस स्लाइड में, इस स्लाइड में। इस गोश्त को धोना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए वन थिंग ये है कि जो मीट जो आप रिसर्च से जो चीजें बता रहे हो, जो मीट हम लोग कहते हैं वॉश नहीं करें, तो वो मीट प्रॉपरली जो पैक्ड, जो यूजुअली ग्रोसरी स्टोर्स में या बाहर मुल्कों में जो प्रॉपर स्लॉटर हाउसेज होते हैं, अगर तुम उनकी पिक्चर्स देखो ना, तुम बोलोगे यार जानवर दबा हुआ है, तुम मारोगे नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये हमारे यहाँ तो जो मीट हमें मिलेगा उसमें लिटरली बता रही हूँ एनिमल एक्सक्रीटा, फीसेस, वो तक भी आगे पीछे हुए होते हैं, और उसमें पता चल रहा होता है कि उसको बहुत एक्सटेंसिव वॉशिंग की जरूरत है। हाँ मगर ये कि जब आप वॉश कर रहे हो तो उसके एक होता है कि बहुत ज्यादा पानी डुबो के छोड़ दिया, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। और सेकंड ये कि थोड़ा सा आप उसको बिफोर रेफ्रिजरेट थोड़ा सा उसको ड्राई कर लो। ड्राई से मतलब ये उसको बिल्कुल पानी ड्रिबलिंग, वो जो ब्लड वाटर ड्रिबलिंग होता है, क्योंकि वो मजीद बैक्टीरिया को प्रोलिफरेट करता है। बट मेरा ज्यादा मानना है कि हमारे जो इस पर हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो जो हालात हैं, जो रियलिटी है हमारी, उसके हिसाब से वी शुड वॉच द मीट। सॉरी, कीमे की बात हो रही है ना। हाँ देखिए कीमे की बात आ रही है ना। यार हम तो कौन लोग हैं जो कीमा नहीं धोते, चलो बताएं। ये वही जूसेस वाली बात है। अच्छा देखो, डिपेंडिंग हाउ यू आर कुकिंग इट, I'm again माइक्रोबायोलॉजिकली मैं इसका आंसर बहुत वाइसली दूंगी कि अगर तुम उसके कोई ऐसी चीज बना रही हो जो कि सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सुपरफिशियली कुक हो रही है या अंडर कुक्ड है, ठीक है, मिंस मीट की भी चीज ऐसे बनते हैं, अगर उसके सिंपली टिक्का बोटी कबाब बनाने हैं खूब सारे गलावट लगा के ठीक ठाक वाले सही वाले, तो ठीक है, सही है, आप उसको नहीं धोए क्योंकि लोग, लेकिन मैं कहती हूँ आप उसको भी एक दफा वॉश कर लें, उसको ड्रेन कर लें, क्योंकि देखिए द वाटर द ब्लड इट हैज बीन ड्रिबल्ड, उसमें खाली वो चीजें नहीं है, उसके हालात बेटा ये आप देख रहे हो, ये आप फर्श देख रहे हो, आप कभी इस फर्श पे उठी हुई टॉफी भी नहीं खाओगे, तो बगैर धुले गोश्त कैसे खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये आता है, लोग कहते हैं कि यार कुक हो गया, तो हाँ, इफ यू आर एश्योर कि उसको कुकिंग टेम्परेचर मोर देन 250 200, उसको वो भुनाई वाला अगर एलिमेंट है तो यू कैन स्किप, अदरवाइज आई थिंक। मैं यही तो कह रही हूँ, वेजिटेबल्स पे भरोसा नहीं है अब तो, सारी वेजिटेबल्स।
अच्छा, ये स्लॉटरिंग का मतलब ये हालात होते हैं, देखें। और ये पिक्चर मैंने बड़ी रियल डाली है, और ये आप देख सकते हैं, खाली हसन स्क्वाड समथिंग भी है लास्ट ऑफ फेम की पिक्चर। तो ऐसी बहुत पिक्चर्स अभी आपको मिल जाएंगी पिन इंटरेस्ट पे, गूगल। तो ये हालात हैं स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडेड एंड लैक ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाँ, हाँ, ये अच्छा, कुछ लोग चिकन को भी सिरके में, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा क्या करती है कि विनेगर इटसेल्फ एसिडिक, अगर आप सिंथेटिक विनेगर यूज करें, एसिडिक एसिड है, तो किसी भी चीज को आप एसिड को एक्सपोज करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। और सेकंड ये कि हमारे कुकिंग मेथड, मैं अगेन रिपीट करूंगी, शी इज समवेयर राइट, कि हमारे कुकिंग मेथड जो है ना वो बैक्टीरिया मार देते हैं, बिल्कुल। लेकिन आजकल कुछ डिशेज ऐसी हैं जो, एक तो स्टेक बहुत कॉमन हो गया, प्रॉपर स्टेक हाउसेस खुल गए। मेरे बचपन में तो स्टेक हाउसेस नहीं थे मैम, मुझे ज्यादा याद है। अब लोग स्टेक खाने लग गए। इट्स अंडर कुक्ड मीट जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ना बेक होता है। या अगर आप बेक कर रहे हो किसी चीज को, तो देखो बेक को तुम वो टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी से नहीं दे रहे जो तुम कुकिंग में दे रहे हो, ठीक है। तो मैं फिर उस वक्त अगर कुकिंग चॉइस तुम्हारी डिफरेंट है तो फिर तुम उस पर फैसला करो कि तुम उसे वॉश करोगे, बट बेटर टू वॉश, ठीक है। Now, quiz time scenario. A 32-year-old butcher presents with a high-grade fever, malaria, thrombocytopenia. Thrombocytopenia is the lack of the WBC. And bleeding gums 5 days after handling sacrificial animals during Eid al-Adha. He reports frequent tick exposure during animal transport. ठीक है? समझ आ रहा है क्वेश्चन? Question. Which infection should consider most urgently? रुक जाओ, आंसर ऑप्शन है dengue fever, leptospirosis, Freeman Congo hemorrhagic fever and enteric fever. कॉन्गो, ठीक है। तो टिक एनिमल एक्सपोजर से यूजुअली जो डिजीज जोनोटिक है एक्सपोज, वो CCHF ही है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। करेक्ट आंसर फ्रीमन कॉन्गो hemorrhagic। क्वेश्चन आसान है, मुझे पता है लोग कर लोगे। जस्ट थोड़ा लाइक एक होता है ना वो रैपिड फायर राउंड टाइप होता है कि आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हो चीजों। Several members of a household develop acute gastroenteritis after consuming meat dishes prepared during Eid celebrations. Investigation reveals repeated thawing and reheating of the stored meat over 3 days. ठीक है। अच्छा, हाँ, कितने लोग हैं जो गोश्त को डीप फ्रीज कर कर उसको बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, फिर उसको, अच्छा यूजुअली तो देखिए फ्रेश आप कुक करो ना, वो सबसे बेस्ट होता है। जितना ये जो हमारा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, फिर कह रही हूँ कि ये जो डीप फ्रीज कर दिया, फिर वो जब आप उसको दोबारा अगर, अच्छा एक और बात, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गोश्त निकाला फॉर एनी रीजन, 2 बोटी 3 बोटी आपने निकाल वापस कर दी, गोश्त ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, या तो आप पैकेट्स ऐसे बनाओ कि आप उसको वन टाइम यूज कर लो, उसको रीफ्रीज नहीं करो। क्योंकि अगर आप रीफ्रीज करोगे ना उसको थॉ करके, यानी उसको पिघला के, तो यानी कि उसके बैक्टीरिया को आप मजीद दावा दे रहे हो, उसमें प्रोलिफरेट होगी। तो उसको रीफ्रीजिंग या थॉइंग, ये बिल्कुल थॉ करना है तो फिर पका लो, विच मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन। एक्सेसिव स्पाइस यूजेस, ये भी हो सकता है वैसे। रिपीटेड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, हाई प्रोटीन इंटेक और डिलेड कुकिंग आफ्टर स्लॉटर। रिपीटेड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, correct answer, repeated temperature fluctuation. One more question. Foreign Nicolata open disposal of animal waste near residential drainage system leads to increased fly activity and contamination of nearby water sources. Question: which transmission route is most likely associated with the resulting GI illness? एक छोटा सा जैसे मैं सिनेरियो बताती हूँ कि पानी जो है साफ नहीं आ रहा। अब पिछले महीने गुजरी बकरीद और अब पानी साफ नहीं आ रहा, तो मतलब क्लोरीन डाल देते हैं लोग टैंकर्स में और फिर भी पानी, और बच्चे ने कुल्ली कर ली या पानी थोड़ा चला गया और अब सबको घर में लूज मोशन, डायरिया और वॉमिटिंग है, ठीक है। क्या कॉज हो सकता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, फीको ओरल ट्रांसमिशन या सेक्सुअल ट्रांसमिशन? फीको ओरल क्यों? फीको ओरल क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बेसिकली जो पानी, जो मैंने तुम लोगों को पिक्चर दिखाए हैं, वो फीका जो एनिमल एक्सक्रीटा और जो हमने ओजड़ी जो चीजें फेंकी है उससे कंटामिनेटेड है और वो कंज्यूम हो गया है ड्यू टू द ड्यूरिंग द ओरल, ठीक है। ये हालात हो गए हो फीको ओरल।
A city experiences increased zoonotic infection, foodborne illness, and environmental contamination during Eid al-Adha due to unsafe slaughtering and poor waste management practice. ये सिटी हमारा ही है, ठीक है। क्वेश्चन है, which public health concept best addresses the interconnected problem? इसका आंसर तो मुझे लगता है तुम लोगों को बताया, उसको देना चाहिए। ऑप्शंस हैं precision medicine, one health approach, hospital based surveillance या syndromic management. One health approach. What is one health approach? तीन चीजें वन हेल्थ में, फर्स्ट ह्यूमन, सेकंड एनिमल्स एंड थर्ड एनवायरनमेंट। सो बोल्ड, ये हलाल हो गए वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ। आस्क मी नो मोर क्वेश्चंस। थैंक्स, आई होप यू पीपल एंजॉय। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्टिव था। और बताओ किसी का कोई क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक है? और ये जो जी मैं बता, ये जो फ्रेश जो भी कटा हुआ जी 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 कुक कर रहे होते हैं और जो बाजार से आता है उससे कुकिंग टाइम में कोई फर्क रखना चाहिए? मैम फ्रेश से मतलब कोशिश है कि जब बना पकाना है ना तो उसी टाइम लेके हम फ्रेश कर लें। और फ्रेश तो जितना हमारे सामने, जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, जो बूचर्स होते हैं, जो गोल मीट शॉप्स होती हैं, जो ये जरा थोड़ी सी वैसी वाली शॉप्स हैं जो थोड़ी रेगुलेटेड है, इनका साफ सुथरा गोश्त होता है, स्पार है, मीट वन है और दो तीन है, तो मतलब रिस्क दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई खास नहीं, क्योंकि वो तो हैंग कर देते हैं। और दूसरी बात है, वो बहुत फ्रीजर में रखा हुआ होता है, ये भी बात है, वो यूजुअली फ्रेश नहीं होता क्योंकि उन्होंने बड़ा सफाई का ख्याल रखना होता है, तो उन्होंने वो 2 दिन। अच्छा, जो फ्रेश होगा वो सबसे बेस्ट है, आपने अपने सामने कटवाया, सामने आप लेकर आए और सामने आपने धोया और पका दिया, दैट्स द बेस्ट मेथड टू अवॉइड। जितना आप उसको टाइम दोगे, जितना फ्रीजर से खेलोगे, बाहर अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, वो उतना उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करेगा। बैक्टीरिया उस टाइम नहीं करेगा, बैक्टीरिया बेसिकली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से प्रोलिफरेट करता है। ये ऑलवेज कीप इन माइंड, लोगों का माइंडसेट है, ठीक है। अगर हम फ्रीजर से गोश्त निकालते हैं जो पैकेट हमने बनाया जी, है पर्टिकुलर टाइम बिल्कुल। तो निकाल के डायरेक्ट हमें कर लेना चाहिए? नहीं मैम, थोड़ा सा थॉ कर ले, आप थॉ करके उसको सॉफ्ट कर ले, देन हम उसको वॉश कर ले, वॉश दोबारा भी वॉश कर ले, वॉश करके कुछ लोग वॉश करके नहीं रखते, बाद में भी वॉश करते, मैं वॉश करके रखे। और जैसे इसने बताया कि थोड़ा सा विनेगर अगर टेस्ट का इशू नहीं है, 1-2 ड्रॉप भी इनफ होंगे, वो डाल के पानी में थोड़ा सा करके और वॉश करके। फिर भी ये बात मैम, कुकिंग मेथड क्या है, अगर आप कोई ऐसा सालन बना रही है जिसमें उसकी बोटी बोटी अलग हो जाएगी तो उसको डायरेक्ट फ्रीजर से कुक कर ले, बेचारे का कुछ नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं बचेगा। अच्छा, जो कोड में है और ये जो हमारे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी खाने हैं ना, बेसिकली दे डोंट नीड दैट मच ऑफ, जैसे उसने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? हाँ, हाँ, कि अब वो कीमे वाली बात ना रीबा ने बोली, तो वो अगर आप वो जो कीमे की बुनाई होती है ना, तो जब तक कहते हैं कि वो पूरा ऑयल ऊपर ना आ जाए, जो स्पेसिफिक कुकिंग, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो मुझे बड़ी ट्रेडिशनल। लेकिन जो ये वाले खाने हैं, शॉर्मा और डेट हंटर बीफ, और इसके अंदर अंडर कुक्ड या थोड़ा सा लेस टेम्परेचर यूज हो रहा है, उसमें हमने बहुत अट्रैक्टिव रहा है। ये बात। एनी मोर क्वेश्चन? आई होप कि मजा आया होगा सबको सेशन में। सबके जानवर आ गए? किसी जानवर तो पता नहीं क्या करोगे तुम लोग, तुम लोग तो मुझे जानवरों के शौकीन ही नहीं लग रहे हो। लोग गाय वाली गाय नहीं लानी किसी को। हाँ सही सही सही। शहरों में लोग डरते हैं, एक दिन पहले या 2 दिन पहले जी 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 उनके जी पास स्पेस कम है। जी, स्पेस का बिल्कुल नहीं, बकरे वगैरह तो इधर गाय का ही होता है, लेकिन अब तो मैम पता है, मुझे लगता है इस पे भी ना थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेने की जरूरत है। गली में गाड़ी गुजरने की जगह नहीं है, लेकिन 2 टेंट लगाकर 2 ऊँट भी खड़े हैं, 3 गाय भी खड़ी है, वो बेचारी भी परेशान है, इसका मुंह से टकरा रहे हैं, उसके मुंह से टकरा रहे हैं, लेकिन गर्मी का हाल देखें आप। लेकिन वो लोगों को थोड़ा सा शो ऑफ वाला फैक्टर हमारी आवाम में है, तो इट शुड बी कंट्रोल। लेकिन बकरीद इज नॉट ऑल अबाउट दैट ना, कि आपने और वो। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि वो बेचारा वहाँ गाय की खड़ी होने की और कैमरेज की खड़ी होने की जगह नहीं, वहीं टेंट में शाम में 10 बच्चे भी मौजूद होंगे। एक इधर से जा रहा हूँ, उधर से जा रहा हूँ, तो दिल से जा रहा हूँ, पकड़ के उनको बोलूं बेटा ये, और फिर वही पानी लेके वो घर चले जाएंगे। ठीक है, ये तो ये सारी बात है। और टिक्स का जो है ना, बच्चों में बहुत हमारे पास हॉस्पिटल में केसेस आते हैं कि वो टिक अंदर से ली गई है, बर्मा अब तो अवेयरनेस हो गई है, तो टिक के ऊपर तो बहुत एक्शन हो रहा है। आप लोग किस टाइप यूज करते हैं?
पार्ट से चली गई। नहीं, वो जहाँ पे जाती है ना तो विद इन 48 to 72 आवर्स एक रेड कलर का ना वो ताज बन जाता है, और थोड़ी सी खारिश, कभी दर्द या कोई ऐसा होता है, वो बाद में हम सुई लेकर निकालते हैं, तो डॉक्टर इमरजेंसी की डॉक्टर निकालते हैं, हम तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ये कि उस टिक को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई, अच्छा टिक की भी माइक्रोस्कोपी होती है, उसके पाँव देखे जाते हैं, हाथ देखे जाते हैं, उसकी खाला चाचा मामी की बेटी तो नहीं, कोई कोई और, तो क्योंकि सीरियसली देयर आर लॉट ऑफ टिक्स आल्सो ना, एंड वी डू स्टडी के ये वही टिक है, तो स्पेसिफिक टिक है जो सीसीएचएफ से होती है, तो बिकॉज सीसीएचएफ इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, आप फिर रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर आपने वो एनिमल आइडेंटिफाई करना है, वो 10 को ना लगा दे जाके टिक, ये भी इम्पोर्टेंट। ये सारी चीजें ना एक्चुअली हम लोगों के बेसिस पे ना, ये सारा एनिमल रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम है। जब आ रहा है ये स्लॉटरिंग वाला काम है एनिमल रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, जो पार्ट मिसिंग है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं इस हर पार्ट में हर पार्ट मिसिंग है, बिल्कुल हर पार्ट मिसिंग है, हम लोग खुद कर रहे हैं। हम लोग को खुद करना है, और सारे मेजर्स हमें लेने हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम केयर नहीं करेंगे ना तो इवेंचुअली एंटीबायोटिक मिसयूज और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रमोट होगा, और वो क्या होगा कि अभी तो वो बीमारी सही हो जाएगी, कल को कोई और बीमारी किसी वजह से होती है, वो एंटीबायोटिक जिसे काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगी, तो ये हमारा अपना नुकसान है ऑन द लॉन्ग रन। ठीक है, ओके, आई होप कि सबको समझ आया हो और मजा आया हो और एंजॉय किया हो। ठीक है, थैंक यू। ओके, Thank you, Dr. Saab, for such a wonderful session. मैं डॉक्टर स्मिथ, प्लीज souvenir नहीं वो डॉक्टर समन हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर फरहाना अवैस से भी मैं कहूँगा कि प्लीज, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे आईसीसीएस बीएस में और फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज। Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू।